Hi everyone. I Chinmay on behalf of Pragyata Foundation welcomes you all. Today with us we have Mr. Shah Izaz, who is a senior journalist, social activist, sports and culture promoter, commentator, motivational speaker and youth counselor, and he comes from a beautiful place in India which is heaven on earth, that is Kashmir Valley. I welcome you, sir. Thank you so much, Chinmay. So, Thanks a lot. to our audience, I would say today we have picked a topic which is very important for all of us since last year, March 2020. From the time the lockdown has started, everybody is at home using internet to the extent beyond any saturation point. So today our topic is what is the role of social media, especially in our day-to-day life, in life of students. What is the importance of it? So while with starting with the show, the first question would be, sir, what is the age group you would advise the social media should be used? What is the advised age group that people should start, or students, or anyone can start using social media? First of all, Chinmay, I would like to thank Pragyata Foundation and especially you for having me here for this topic. And it's a pleasure to be with you talking on this very special topic, as you already mentioned. The question is about social media. But before I discuss social media, I would like to discuss the media. Actually, you know, everything depends upon the communication. Media and communication, these are two things which are interlinked and interrelated. So whenever we learn something at an early age, then we grow up by the time, and we always try to share the knowledge, try to share whatever we have learned or whatever we need to learn. हम लोग सब क्या करते हैं? We share things with others, and that becomes the first mode of communication. Now the media is actually something that makes us to communicate with others. That is the media. Now, coming to the social media, as you all know, this world is nothing without social media. This the boom of social media we see every day, everywhere, and one feels incomplete, one feels neglected, one feels he feels nowhere in the world if he is not connected on social media platforms, be it anything, Exactly. maybe the Facebook, Instagram, whatever. But the Mm-hmm. thing is that if we are making a good use of social media platforms, it Mm-hmm. enhances our language, it Mm-hmm. enhances our knowledge, and it makes us more competent to do most of the things what we actually intend to do in our lives. But the thing is that what is the proper age? That is the most important question one has to understand and one has to focus upon. The thing is that in this current scenario, we see very young children using social media platforms. And most of the cases, you might have heard, you might have read in newspapers that there are scammers, there are other things happening all around. That is only because we don't know when to use social media and to what extent social media can be used. There becomes the responsibility of a guardian or a parent. Now, what is the exact age? I would suggest, if you're making use of social media or any other platform, say any platform of the social media, if you're using, and you have to first think and understand why are you using that media. If you are in a school, if you're a school going boy or girl, there's no need to be on Facebook. There's no need to be on Instagram. There's no need to be on any of the platforms. The only thing what makes you to use internet is your education. And if you're seeking education, because of the COVID pandemic, we are having crisis in education. And only there where we suggest our children, the young boys, young children, even those 5 6 year old children who are who have just started to go to school, we are making them to learn things via online classes. That is the only medium where you have to use social media, where you have to get connected on internet. And I suggest, what I suggest is that if you have a boy or if you have a child of age less than 10 years, he doesn't need to be on social media unless and until
it is very important. It is mandatory that he or she attends online classes, and Okay. there becomes the responsibility of a parent, or maybe both of the parents, that they have to look into the things where their child is connecting to classroom, or is he doing anything else. Because of the environment what we have right now, our children are, sitting, and they are actually in such an environment where there's exposure everywhere. Any of a child which uh, any of the child who is exposed to, say, social media, any sort of social media, it becomes an entertainment for them, and then this message is passed to the other child. They actually make use of the social media, and then the things become getting ugly. That Yeah. is the responsibility of a parent or a guardian to guide their child, guide their ward, what they are actually seeking from internet. That is the basic thing. So the question I would answer in short is that if you are of the age which is not, which is not treated as the age of maturity, that is 18 years. If you are less than 18 years and you don't need to be on a social media platform, then don't use it. If you're using it, if you're using Google, you have got so many search engines where you are seeking knowledge, where you are looking for some discoveries, inventions, maybe medicine, anything. Not less than 10 years. You don't need anything to study from Google, except these COVID situation days. You don't need anything, because all the study material, all the things you need to learn, you need to study, they are coming directly from the school. You don't need to Yeah, go for the Google, and absolutely. you don't. Then Absolutely. if you are now in a high school, there are some things, there are many things there where you need to go for a Google, go for some other search engine. That becomes a necessity. But I always advise parents or guardians to be with the child when they are using internet, so that they So can this is perfectly guide them. okay. Yeah, so they can perfectly guide them which site to visit and which sites not to visit. That is the very important thing. Okay. So I was coming to it, since you have emphasized it again and again. आपने बार बार ये बोला कि responsibility सोल और होल होती है पेरेंट्स की और गार्डियन की, कि वो चेक करें कि अगर 10 साल की कम उम्र का बच्चा है या फिर मेच्योरिटी एज अभी नहीं हुई है, बिलो 18 years का है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट द किड इज डूइंग. सो बीइंग अ social activist and also a youth counselor, so do you think that it is important, the counseling of the parents, especially with the usage of internet and this .com thing, which has widely, after globalization, has widely occupied all of us, all of our mind. तो ये जो काउंसलिंग है पेरेंट्स की इस चीज को लेके, यूसेज ऑफ इंटरनेट को लेके, यूसेज ऑफ सोशल मीडिया को लेके, बिकॉज सी इवन इफ पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट, आई डोंट थिंक वो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आजकल इवन आई सी इन माय नेबरहुड दैट पीपल, सॉरी नॉट पीपल, kids of 5 years, 6 years are having their own cell phones, जिनमें वो गेम्स खेलते हैं, प्रॉपर वाईफाई से कनेक्टेड होता है ना. तो शायद उनके पेरेंट्स उनको गेम खेलने दे रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद इट, बिकॉज टुडे द किड्स आर वेरी स्मार्ट. So what do you think, the counseling of parents with this is important, government should do something about it, or we as NGOs should do some kind of parents counseling sessions wherein we invite parents and tell them that what should be done as a parent with regarding to usage of internet? Yeah, see, the first thing that comes to our minds is that the relation with that child, that the relation with that ward, it belongs directly to us, not with the government, not with the NGO. That is the first thing. We always forget this thing. Nowadays we see that is almost in every household. You can go and you can check if there are 4 family members, 4 will be, you would like to, interact with them, and you would ask for them, where is Mr. Mr. D and Mr. B? They would say they are in their rooms. What are they doing? They are having their mobile phones in their hands, whether they are chatting, whether they are browsing, whatever they are doing. That has, this impact has already, disturbed the relationships within the family. If you are having 4 family members, 4 are taking 4 corners and they are sitting with their mobile phones. Absolutely. The direct impact, yeah, that makes a direct impact on the mind,
of their child. So वो बच्चा भी जिद करता है भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना लेकिन गेम खेलना है. And we have seen so many instances going on. PUBG एक गेम है that became so popular कि बच्चों ने अब माँ बाप को तंग करना शुरू कर दिया, सामान तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, और उसके साथ साथ कुछ सुसाइडल केसेस भी हमारे सामने आ गए. दैट इज बिकॉज फर्स्ट आप तो मना कर रहे हो बच्चे को, ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन पहले तो पेरेंट को ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ. इफ आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को तो खुद बिगाड़ रहा हूँ, दूसरों की तो बात ही नहीं है. अभी आप आए हो, स्कूल से बच्चा आया है, इससे बजाय इसके कि आप बच्चे के पास बैठो, बेटा आप बताओ आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, मुझे बुक्स दिखाइए, आपने होमवर्क पूरा किया था नहीं किया था, वो आप करते नहीं है. बच्चा जब आता है आपको या तो आपको घर पे नहीं दे पाएगा बिकॉज यू हैव गॉन आउट ऑन योर जॉब और बिजनेस और व्हाटएवर. जब आप आते हैं तो फिर आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, आप फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? फर्स्ट थिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट आइज ऑन द पेरेंट्स. देन अब जो चीजें बिगड़ गई हैं, जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल आपको लग रहा हो गई है, उसमें सोसाइटीज का रोल है, सिविल सोसाइटीज का रोल है, एनजीओ का रोल है. दे कैन ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सेशंस, they can actually talk to children, not only children but the parents also. We have to involve both. Right. अभी आप देखिए कुछ साल पहले का ट्रेंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को आप कितना पढ़ाएंगे, बच्चे को आप कितना मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा में डालेंगे. वो तो ऑलरेडी स्कूल में परेशान हो जाता है. आपको चाहिए उसके साथ थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज करिए. अगर आपका लॉन है, आप उसको बाहर ले जाइए. कोविड की वजह से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने लॉन में आप उसको आउटडोर एक्टिविटीज करा सकते हैं. वी कैन go for a session of badminton. You can play volleyball, you can play carom in the open environment. तो ये सब चीजें बच्चे का माइंड डाइवर्ट करके उसको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लगा देता है. लेकिन बच्चा अगर आप चार दीवारी के अंदर आप बच्चे को रखते हैं, उसके बाद आपके हाथ में वो मोबाइल देखता है, बस जिद करता है बच्चा, और जिद करने के कारण क्या करता है, आप कहते हैं बच्चा रोए नहीं इसलिए मोबाइल हाथ में थमा दिया. Exactly. तो अभी मैंने ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं काउंसलिंग में, कई केसेस मेरे सामने ऐसे भी आए हैं जहाँ पे बच्चे को बिगाड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है पेरेंट है. बिकॉज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ रहा है. वो कहता है बच्चे के साथ टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने काम से बिजी हूँ, चलो क्या करता हूँ, मोबाइल पकड़ा देता हूँ, खेलता रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा गेम खेलता रहेगा. अल्टीमेटली ये जब बच्चा जो है उसको जब ये लत लग जाती है, he becomes addict or he or she becomes addict of that mobile phone. Absolutely. उसके बाद ये पेरेंट कहते हैं नहीं छोड़ दो मैं नहीं दूंगा, फिर बाद में क्राइसिस शुरू हो जाती है. तो ये हमें देखने की जरूरत है. एज अ पेरेंट आई हैव टू लुक इनटू दिस. आई हैव टू सी कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या मैं बनाना चाहता हूँ. क्या मैं बच्चे को फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं बच्चे में कुछ बैड हैबिट्स डाल रहा हूँ. ये सबसे पहला मेरा काम है. उसके बाद ये जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा एनजीओ पे, मैं समझता हूँ इस केस में जैसे आपने मुझसे सवाल किया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट की लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? एक फैसिलिटी आपको दी जा रही है. इफ योर कंट्री एंड इफ योर लॉ प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू यूज इंटरनेट, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट, इट्स इन योर हैंड्स, नॉट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो मैं यही कहूंगा इसमें कि पेरेंट्स का सबसे अहम रोल है. पेरेंट्स हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मेक देयर चाइल्ड एन एडिक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, or they want to make him physically and emotionally as well as mentally stable and strong. That is up to the parents. Yes. Thank you so much. This is a very critical information which I think parents को जानना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आज के डेट में means outdoor activities are not at all encouraged by parents. Yes. I guess because वो भी because means अभी current situation में especially because everybody I don't think is having a lawn or a garden कि वो जाके बाहर खेल पाएं. So in that situation जब stay home, stay safe वाला शुरू हुआ तो हर कोई चार दीवारी में बंद हो गया and nobody is able to go out. In such situation, I think ये situation और worse हो गई कि बच्चों का और मोबाइल का relation बहुत deep हो गया है. So that's why we thought that we should have a speaker and who could really counsel on these things. Here I would like to add one thing, most important. Yes, that this is a universal fact that we are surrounded by such an invisible enemy जिसका हमारे पास अभी कोई तोड़ है नहीं. We are still living with precautions. We are living with precautions and we have to carry on with this for some time. I don't know, वो किसी को नहीं पता कब तक. Yes, this has come like a disaster for us, everyone.
हाँ, इसमें क्या होता ना, there you have to prioritize things. You know, the priority means if you want a good health or if you want life. अगर आपके सामने ये सवाल आएगा कि आपको जिंदगी चाहिए क्या अच्छी सेहत चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी लाइफ. पहले तो जिंदगी चाहिए, देन वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ. उसके बाद हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए, तो वो कहते नहीं, हेल्थ चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी हेल्थ की है. सेम वेज वी आर लिविंग इन सच अ सिचुएशन राइट नाउ दैट हमारे पास, हम पैंडेमिक में कहीं जा नहीं सकते. हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जान बचाओ. तो जान बचाने के लिए जरूरी ये था कि वी हैव टू स्टे इनडोर्स. तो उसमें क्या होता, स्टे होम स्टे सेफ, ये सबसे पहली बात थी जिसपे हमें अमल करना. तो मजबूरी हमारी बन गई कि हमें बच्चे को मोबाइल देना पड़ा, न चाहते हुए भी. वी हैव टू हैंड ओवर इट टू आवर चाइल्ड, क्योंकि उसे क्लासेस लेनी है या कोई और वाइटल इंफॉर्मेशन उसको तो वो देनी ही देनी है. दैट, मगर हमें इस बात का अब ख्याल रखना है, बिकॉज अब धीरे धीरे जो है ना, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, चीजें खुल रही है और पैंडेमिक का भी असर जो है कम हो रहा है. तो अब हमें ये देखना है, सेकेंड स्टेप इज दैट, कि हमारा बच्चा एडिक्ट न बने, और जो उसको जो आदत लगी है इन दिनों में, वो धीरे धीरे कैसे छूटे. अब हम उस पर प्रेशर करेंगे, भाई नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उससे उसका मेंटल ट्रॉमा और बढ़ेगा. So पेरेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे ये, या पेरेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, फॉर अ चाइल्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज ऑलवेज द पेरेंट. So we have to be the best friends to our parents, our children. हमें उनको बिठाना है अपने पास. We have to give our precious time and share with them. उसके बाद उनको प्यार से समझाना है. Now, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ काउंसलिंग सेशंस में ये बात भी सामने आती है, वो मैं बताऊंगा आपको. आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे. वो ये होता है कि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं. जैसे बच्चे कोई जिद करता तो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. पेरेंट, दे हैव टू सिट विद देयर चाइल्ड, दे हैव टू मेक फ्रेंड्स विद देयर चाइल्ड. उसके बाद उसको प्यार से समझाना है. अगर कभी आप डायरेक्टली नहीं समझा पाए तो इनडायरेक्टली, कुछ मैंने ये चीजें की हुई है पास्ट में. तो एक बच्चा कहता है कि एक छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, उसको उसके ज़हन में नहीं आता है सारी चीजें, आप नहीं समझा पाएंगे उसको. तो उसमें क्या करते हैं, तो एक तरीका मैं बता दूं पेरेंट्स को, वो कर सकते हैं कि जब मेरे पास बच्चा बैठता है तो मैं कहता हूँ बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहानी एक सुनाता हूँ. आपको पता है, एक दिन जंगल में ऐसा हुआ, एक भालू था, उसने गलती से क्या किया, वो अपने पेरेंट्स से दूर गया, उसको दोस्त मिला, ऐसे कोई कहानियां बना के. तो फिर एक मोबाइल फोन उन्होंने यूज किया, तो वो मोबाइल के साथ खेल रहा था, पीछे से शेर आया और शेर उसको खा गया, उसको पता ही नहीं चला कि शेर मेरे पीछे है. तो ऐसी कहानी इंटरेस्टिंग भी बनाइए, और साथ में एक बच्चे को एक एक कॉशन भी दे दीजिए कि मोबाइल खेलने से आपका माइंड जो है वो फोकस आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा. Yeah. So basically, parents need to be very mindful about it, and on each and every step, ki how do we handle this usage of phone, especially for kids and also for themselves, right? Acha, sir, my next question is, next question is, जो मैंने लास्ट ईयर देखा सिंस लॉकडाउन, उससे पहले जो रिकॉर्ड्स थे, फिर विद इन लॉकडाउन, देन दिस ईयर 2021 आई सॉ these you also must be aware about the influencers on Instagram, those who make reels having 6.5k influence followers, all of these. So I got to know, as per the survey, the age group of the influencers are mainly between you say 16 years to 22 years, which is a very, I think, critical, delicate age wherein you are using this social media platform to do something. I don't know what future it holds for them, but I think मतलब मेरे टाइम में तो भैया पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, पढ़ लिख के कुछ कर लोगे. And I really don't know how far the social media is going to go, or the reels they make, kind of Bollywood, Hollywood songs, whatever they do, the dialogue presentations, everything, whatever it is. So they are influencers between 16 to 22 years of age. What is the longevity of these kind of things on social media, and also is it advantageous for the kids of this age to indulge themselves in such kind of things? और पढ़ाई करो और ये भी अपना पार्ट रखो, but keep it as a passion, as a जो हम स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते थे वो बना के इसको रखो, but don't make it to your life. I have gone through suicide cases wherein
ये उतने फॉलोअर्स नहीं हुए तो उस इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया, या फिर बुरी आदतों में पड़ गया तो रोड एक्सीडेंट हो गया. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ फार दीज किड्स कुड गो इन द करियर? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस क्वेश्चन पे ना मैं ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली बात करता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरीली कि किसी फॉर्मल सेशन में बात करता हूँ, इनफॉर्मल सेशन जो कैजुअल मीटिंग्स हमारी होती है दोस्तों के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें सारे पेरेंट्स को। आप देखिए, आपका स्टेट का बोर्ड है या आपका सेंट्रल सीबीएसई है, कोई भी बोर्ड हो, आप सबको पता है कि अप टू द 10th स्टैंडर्ड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। यू स्टडी एवरीथिंग, यू स्टडी इंग्लिश, यू स्टडी योर रीजनल लैंग्वेज, यू स्टडी साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं सब कुछ? बिकॉज दिस इज द बेसिक नॉलेज अ स्टूडेंट नीड्स। उसको तब तक करियर के बारे में कुछ नहीं पता होता है। एंड व्हेन ही और शी कम्स टू क्लास 10th स्टैंडर्ड, हाई स्कूल पास करने के बाद उसके पास एक करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो थिंक करना शुरू हो जाता है। तभी इसीलिए सबसे पहला, अगर पेरेंट्स ने कभी गौर किया हो तो 10th तक क्यों पढ़ाई करनी पड़ती है सारे सब्जेक्ट्स की? बिकॉज आपका माइंड क्लियर नहीं है, यू नीड अ बेसिक नॉलेज। व्हेन यू कम टू दिस 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 11th में क्या होता है, देन द चॉइस कम्स अप टू यू, आप कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं। हियर इज द रोल वंस अगेन ऑफ द पेरेंट एंड एज वेल एज ऑफ द टीचर्स, जो मेंटर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, जो भी होते हैं। अगर आप बच्चे को इस 10th के बाद उसका इंटरेस्ट आप चेक कर पाने में कामयाब होते हैं, यू नो द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। आपका बच्चा जो है साइंस में इंटरेस्टेड है, आपका बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, आपका बच्चा किसी फील्ड में भी इंटरेस्टेड है। हर कोई, इट्स नॉट नेसेसरी, मैं बार बार ये कहता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रेशर किया जाए बच्चे को, भाई तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। नो, द विजन ओपन्स। अगर आप बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अब 10th तक बच्चे को आप अच्छे से पढ़ाते हैं, आपने अच्छे से कोऑपरेट किया, आपने फैसिलिटेट कर दिया बच्चे को, लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको दिया, देन द माइंड ओपन्स। चाइल्ड का माइंड ओपन हो गया, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाता है कि ये किस लाइन में जाना चाहता है। अगर ये साइंस की लाइन में जाना था तो उसके बाद आप उसको साइंस पढ़ाते हैं, उसके बाद उस स्ट्रीम में आप एंट्रेंस वगैरह के लिए उसको तैयार करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आर्ट्स में भी जाना चाहता है, उसमें भी करियर है, ऐसा नहीं है कि उसमें करियर नहीं है, उसमें जाना चाहता, फाइन आर्ट्स में जाना चाहे, जिसमें भी जाना चाहे, बच्चे को इतना पता होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से मैं कहूंगा पेरेंट्स पे ये आता है कि बच्चे को जो आप नॉलेज दे रहे हैं, जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें आप उनको इस चीज के लिए आमादा करें, इस चीज के लिए तैयार करें, प्रिपेयर करें उनका माइंड कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा इज नॉट द गोल, पैसा आपका गोल नहीं है। आपका कामयाबी गोल है। कामयाबी कौन सी? जिसमें आपकी डिग्निटी हो, आपका सोशल स्टेटस हो, आपकी इज्जत हो, आपकी वैल्यू हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे वैल्यू? 10th के बाद आपका बच्चा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, आप उसको क्रिकेट एकेडमी भेजते हैं, लेकिन मॉरल वैल्यूज के साथ उसकी परवरिश करते हैं, एंड ही गोज टू द एकेडमी, और एक दिन क्या करता है कि वो स्टार बन जाता है, वो सेलिब्रिटी बन जाता है। कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। उसको छोड़िए, कोई बच्चा आपका सिंगिंग में जाता है, कोई बच्चा आपका किसी और आर्ट में जाता है, चले जाते हैं। लेकिन जो इस लेवल पे जो एक्चुअली हमारा मेन फोकस है, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम या किसी और चीज पे रील्स वगैरह बना के, ये जो माइंडसेट आ गया आज के बच्चों का, वो ये आता है कि मैं शायद इसी से पॉपुलर बनने वाला हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। ये बच्चों के माइंड में आता है। और अगर आपने the history reveals this thing and studies reveal this thing that अगर आपका बच्चा 20 ईयर की एज से पहले पैसा कमाने की सोचने लग जाए तो उसका करियर बर्बाद हो जाता है, ये सबको पता है। अगर आपने बच्चे को माइंड में ये डाल दिया कि आपने पैसा कमाना है, और बच्चे ने ये सीखा कि किसी और का, भाई उसका गूगल से इतना पैसा आ गया तो मैं तो उससे डबल करूंगा, तो यहाँ पे चीजें जो है वो एडवर्स हो जाती हैं। ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम की रील्स आपको बस वहीं तक सोशल मीडिया का ही स्टार बना देती है, आपका कोई फ्यूचर नहीं रहता, आपका कोई करियर नहीं रहता। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को ये चीज समझाई जाए कि पैसा इज नॉट द गोल, पैसे के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि ही इज गोइंग टू सीक नॉलेज, ताकि वो लाइफ में एक बड़ा नाम कमा सके, जिसपे न सिर्फ उसकी फैमिली बल्कि पूरे देश को गर्व हो। तो ये जब उसको समझाया जाए, उसकी जब अच्छी से काउंसलिंग करी जाए, उसके साथ जब एक दोस्त की तरह आप जब बैठेंगे, फादर अपने बेटे के साथ जब एक दोस्त की तरह बैठता है ना, तो बहुत सारी चीजें जो है बच्चा करने से फिर दूर हो जाता है कि भाई ये चीजें गलत है, ये नहीं करूंगा। लेकिन जब आप उसको एक स्पेस देते हैं, जैसा जैसा आपने कहा कि सुसाइड्स भी
बातें आ जाती है, बिकॉज बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है टाइम, पेरेंट का टाइम। अब हर Exactly. वक्त तो ये नहीं कहेगा कि 24 घंटे मेरे साथ बैठो, लेकिन जितने जितने आप एज में बढ़ते हैं, 10th के बाद 11 12, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, स्कूल में चैलेंजेस आते हैं। इवन कभी बच्चा क्या करता है कि आप क्लास ले रहे हैं, टीचर के सामने वो बोल नहीं पाता, नर्वस फील करता है, और बाकी बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ही बिकम्स अंडर प्रेशर। ये बात वो घर पे जाके अपने पेरेंट्स से करके खुल सकता है, वो पेरेंट उसको बोल सकता है, भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो उनसे अच्छा बोल सकता है, तो ये कर सकता है, तो एक बूस्ट अप करते हैं उसका मोरल, बूस्ट अप करते हैं उसकी जो एंथुसियाज्म, वो बच्चा Exactly. इंटरेस्ट लेने लगता है, और वो चीजें, डिप्रेशन का शिकार वो नहीं होता है, वो चीजें चली जाती है। लेकिन उल्टा ये होता है, बच्चों ने, उसके क्लासमेट्स ने उसको टीज किया, वो बच्चा घर पे लोनली फील करता है, डिस्टर्ब्ड फील करता है, लेकिन पेरेंट्स से बात नहीं करता, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, या पेरेंट्स ने एक डर बना रखा है बच्चे पे, जिसकी वजह से बच्चा उनके सामने भी बात नहीं कर पाता। तो ये चीजें उसके माइंड पे हावी हो जाती हैं, और दैट मेक्स अ चाइल्ड टू गो फॉर एन एक्सट्रीम स्टेप। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी चीजें हो जाती जो हम नहीं चाहते। Okay. बाद में आपने देखा होगा कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं, पेरेंट पेरेंट फिर रोते हैं, रोते रोते कहता है, भाई अब तू कुछ मत कर, पढ़ाई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ जान चाहिए, लेकिन देर हो चुकी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे हम सबको समझने की जरूरत है। So, a bottom line, what I could take a message from you, and you have means you have really said it so well. Ki the bottom line is the parents are the main people who need to take care of all of these. बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चे अगर खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ज्यादा एम्फेसाइज करो, आप उनको टाइम दो, उनसे बातें निकलवाने की कोशिश करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जब बच्चा घर में इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अगर वो घर में नहीं कर पाएगा खुद को एक्सप्रेस, देन दे चूज अ रॉन्ग पाथ टू एक्सप्रेस देम, और फिर वो कोई भी मीडियम हो सकता है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द इजिएस्ट प्लेटफॉर्म्स और मींस रीचेबल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप स्ट्रेंजर से भी बात करके आपको एक अलग लेवल की खुशी मिल जाती है, जो शायद आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे हैं, एंड इन दैट टेंडर एज इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आफ्टर 4 to 5 years. So very well said, sir. So moving on to the last question. Yeah. One more thing before you go to the last question, one more thing I would like to add to this. ये चीजें जब आप एक गैप क्रिएट कर देते हो ना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, एक गैप, उसके बाद वो बच्चा जो, बिकॉज ही इज इनोसेंट बाय हिज माइंड, हिज और हर माइंड, तो कोई उसे सजेस्ट नहीं करता, भाई टेंशन को दूर भगाने का सिगरेट स्मोकिंग एक अच्छा तरीका है, वो कहता है चलो मैं कर लेता हूँ, इससे शायद मेरी टेंशन, मेरा होता तो कुछ नहीं, बिकॉज ऐसी चीजें तो रियल लाइफ में, तो इमेजिनेशन में ये होता है कि सिगरेट या कुछ और पीने से जो है These all टेंशन are some mental blockages जो बाहर के लोग शायद इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं when our parents are not properly counseling their kids, right? तभी ये होता है. So again I would reiterate that एक बच्चे ने सिगरेट का एक कश लिया, ये कल वो 2 लेगा, परसों सिगरेट के साथ कोई और ड्रग भी लेगा, एंड वंस क्या हो जाता है कि एक ये बाय द टाइम ये गैप इतना बढ़ जाता है कि दैट चाइल्ड बिकम्स अ ड्रग एडिक्ट, और उसके बाद उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। और क्या हुआ कि क्यों बन गया, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा केयर जो उसको चाहिए था वो अपने टाइम पे नहीं दिया। एक और इसमें मैं छोटी एक बात करूंगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में ओवरऑल, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें ये था कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में कम रहते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे। हाँ, वेर घर के जो बड़े होते हैं ना, जवान होते हैं कि फादर एंड मदर, मे बी फादर एंड मदर, तो वो लोग काम पे जाते हैं, बच्चों को ध्यान रखने के लिए उस वक्त हुआ करते थे दादा दादी, तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, तो पेरेंट्स की एब्सेंस में दादा दादी ख्याल रखते थे। आजकल क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज में ये हो गया कि अब माँ बाप तो चले गए कमाने के लिए, क्योंकि उनको टेंशन है, क्योंकि उनको फैमिली चलानी है, और बच्चा जो फ्री टाइम में जो वो रहता है, जब उसे कोई अपनों का सहारा नहीं मिलता, तो वो स्ट्रेंजर्स पे रिलाई करने लगता है, जैसा कि आपने खुद भी कहा। और स्ट्रेंजर्स ऐसे हैं कि जो मौके की तलाश में रहते हैं, वो आपको किसी भी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करके कहीं भी एविल की तरफ ले जाते हैं, और आसान है। उसमें क्या होता है कि आप देखिए आजकल के केसेस में स्कैमर्स आए हैं, आपको छोटी छोटी चीजों पे ऐसे कुछ काम करवाते हैं, बाद में आपको ब्लैकमेल करवा के आपसे पैसा खींचने की कोशिश करते हैं, और फिर जब ब्लैकमेलिंग की एक लेवल हो जाती है कि अब आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप चोरी करने लग जाते हैं। चोरी आपने
तब भी आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनको, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये गुबार आपके माइंड पे इतना बढ़ जाता है कि आपको सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता दिखता ही नहीं। तो अल्टीमेटली और ये इट्स अ विशियस सर्कल। अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने माइंडफुल तरीके से हैंडल नहीं किया एट दीज टेंडर एजेस, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल जहां से फिर बच्चे को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑडियंस शुड कीप दिस इन माइंड कि जो पेरेंट्स हैं, जिनके भी बच्चे हैं, उनको बहुत ही टेक्निकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा दैट वी आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल for what our kids are doing. So moving on to the last question, sir, we are lacking time. So the last thing is, what is your message to the audience regarding the convenient usage of internet for all age group? Let it be a housewife or a professional or a kid, anyone. What is the convenient use of internet? Yeah, coming to the convenient use of internet, when you are, जो बार बार मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है, नॉट ओनली पेरेंट्स, इफ यू हैव एल्डर ब्रदर और सिस्टर, उनका भी रोल रहता है। ऐसा नहीं पेरेंट का ही है, कोई भी Anybody एल्डर who आपके is घर में elder to us, right? एल्डर टू द चिल्ड्रन, एल्डर टू अस, या तो उनके साथ हमेशा बैठें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। इंटरनेट का भी यूज करना है, कन्वीनियंट यूज यही है। ऑल द इंफॉर्मेशन, दिस इज द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन हाउस व्हाट यू हैव राइट नाउ इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स, जो आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरीज में जाके जो आप महीनों बुक्स में ढूंढते थे तब भी नहीं मिलता था, यहाँ पे एक कीवर्ड आपने डाल दिया टाइप करके और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन कन्वीनियंट यही है कि आप इसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। इसके लिए जितने भी एल्डर्स आपके घर में हैं, आप अपने यंगस्टर्स के साथ बैठिए, उनके स्टडीज में हेल्प करिए, उनसे पूछिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो शेयर उनके साथ करने में आप हेल्प करिए। प्लस अगर आप सोशल मीडिया को एज एन एंटरटेनमेंट टूल यूज करते हैं, तो आप अपने बच्चे पे, आप अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन पे नजर रखिए। डोंट लेट देम to open these Facebook accounts unnecessarily, या किसी फेक नाम से। क्या फायदा है फेक नाम से, एक एक्सपोजर वो उसको मिलता है गलत राह पे जाने का, कल को वो आपको डिच कर सकता है, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकता है। लेकिन जब आप उसको गाइड करेंगे, और प्लस घर में आप अपने घर में आप एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें एक बच्चे को, एक यंगस्टर जो भी आपका है, उसको ये लगे कि दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है, वो मेरी अपनी फैमिली है, कोई स्ट्रेंजर उनकी जगह नहीं ले सकता है। और ये चीज जितनी अच्छे तरीके से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं इनटू द माइंड्स ऑफ योर यंगस्टर्स, उतना आप अपने लिए भी सेफ्टी जो इंश्योर करते हैं और बच्चे के लिए भी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। बिकॉज जब आप और उनके बीच में एक गैप बन जाता है, एक उसको ब्रिज करने के बजाय आप उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो दैट इज व्हेन those strangers come into their lives and वो उनकी लाइफ जो है खराब कर सकते हैं। इंटरनेट का सबसे कन्वीनियंट यूज यही है कि आप रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में अपने बच्चों से, अपने यंगस्टर से बात करिए, उनके सामने आप उनको जो है सर्च करिए, उनके सामने उसको बताइए। उल्टा जो 2-4 चीजें और ऐड कर दीजिए कि आपने इस सर्च इंजन पे इसको ऐसे पाया है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहाँ पे इससे अच्छी वाइटल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बिकम द फ्रेंड्स ऑफ योर यंगस्टर्स and make an environment where they would feel that the most lovable, most dearest and most caring person in their lives is you and none other than you. और strangers पर लाइक मत करने दीजिए, क्योंकि एक ऐसा जमाना आ गया है, इंटरनेट का बहुत ही ज्यादा खराब इस्तेमाल होता है आजकल के जमाने में, और वो तभी होता है जब आप एक गैप बनाते हैं बच्चे और अपने दरमियान, और उसका फायदा कोई और उठा ले जाता है। दैट इज माई मैसेज कि इंटरनेट का कन्वीनियंट यूज यही है, और इसी तरह से करिए, और अपने जो है यंगस्टर्स के फ्रेंड्स बनिए। फ्रेंड्स बनेंगे तब फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, very well said, sir. And with this, I think we will be able to conclude our chit chat show today. And with this, again, I would like to reiterate: let's take this as a social responsibility as well, and create a real world around us. जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी family है हमारे साथ. Let's create a better relationship with them. Let's give time to each other instead giving time to people जिनको हम जानते भी नहीं हैं. And जैसे कि सर ने कहा है कि let's use internet for the purpose जिसके लिए वो बना है, to enhance our knowledge, to enhance our information, not for the things which would create a havoc in the society. So with that, let's conclude it. Thank you so much, sir. And
like we are really grateful to you that you took out time for Pragyata Foundation, and you just gave all the information that I think our audience would be really great and thankful to hear from you. So thank you so much, sir.